So now, let's resume our event. But before we start, I would like to introduce myself. Hi, I'm Hawa Heather. Hello, I'm Shifa Lagari. So let's start our first workshop of the event. In this digital age, storytelling has become an effective tool for giving a voice to the voiceless, for shining a light on untold stories and unheard tales. Within the constraints of just 60 seconds, we learn to craft narratives that resonate deeply and amplify the voices that often go unheard. Behind every great film is a team of visionaries, and we are fortunate to have four exceptional individuals who represent the essence of filmmaking. A director, writer, cinematographer, and a producer are the four pillars that support the film industry. Each of these exceptional trainers of our event bring an immense amount of knowledge and skill to the table. And together, they will guide you through creating a compelling 1-minute film. These trainers are none other than our very own professors. Please welcome one of the senior-most faculty member of Media Sciences Department. He has been associated with entertainment media and storytelling for over 16 years. His most notable recent stint was working as an acting and dialect coach for Disney's Miss Marvel. He is the teacher of all, a director and a theater maestro, Sir Zishan Haider. Next is the cinematographer of The Seedling and our teacher who never lets his student lack in their work. उनके काम की धूम तो पूरी इंडस्ट्री में पहले से ही है, मगर आज उनकी वजह से उनके शागिर्द भी धूम मचा रहे हैं. He is none other than Sir Faraz Iqbal. Now, I would like to call upon the screenwriter of the crime and thriller film Lal Kabutar, a masterpiece that resonated with Karachiites. The writer of Teri Meri Kahaniyas, Jin Mahal and Nayab, someone who brings over a decade of professional experience to the industry. Let's welcome Sir Ali Abbas Naqvi. Next, I would like to call upon one of the producers of the national anthem we all saw in the morning. Last but not the least, the best there is, Sir Umar Kazi. We hope you all have a great time because this show is once in a lifetime opportunity. Thank you. Over to you, sir. हेलो सेंटर कौन मैं सही है थैंक यू वेरी मच. आप सब ने इतना अच्छे तरीके से हमारा इस्तकबाल किया एंड वी ऑल्सो वेलकम यू इन द ZMF 2024. हम थोड़ा सा कैजुअली आप लोगों से बात करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें और पार्टिसिपेट कर सकें. सो सर स्टार्ट करते हैं. नहीं, हम पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं अबाउट व्हाट इज़ वी आर प्लानिंग अबाउट एंड देन मुझे सिर्फ एक बात जानने की कोशिश करूंगा मैं कि कितने लोग हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है और कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इस 60 सेकेंड फेस्टिवल के अंदर, ताकि हमें नंबर्स का अंदाज़ा हो जाए. शर्माई नहीं, बिल्कुल शर्माना नहीं है. फिल्म मेकर का काम शर्माना नहीं होता. ये पीछे कौन है जाजिर कैन यू डू अ हेड काउंट कितने लोग हैं ओके फाइन, ओके गुड इनफ. अच्छा, हमने इसको ब्रेक डाउन इस तरीके से किया हुआ है कि हम पहले स्ट्रक्चर पे बात करेंगे और उसके लिए हमारे पास मौजूद हैं सर ज़िशान एंड अली अब्बास. तो वो डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर एंड आपने किस तरीके से इसको लिखना है, किस तरीके से इसको कंसीव करना है. बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंसीव करना किसी भी आइडिया को.
तो उसके बाद फिर सरफराज जो हैं वो बात करेंगे अबाउट द शूटिंग पर्सपेक्टिव एंड उनके साथ मैं हूँगा. वी आर डिस्कसिंग अबाउट लाइक सिनेमाटोग्राफी एंड द प्रोडक्शन एलिमेंट्स ऑफ द उस 60 सेकंड के फिल्म का. सो ओवर टू यू सर, ज़ीशान एंड अली अब्बास. हम पहले स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं. वी हैव ऑल्सो द एग्जाम्पल्स, तो हम वो एग्जाम्पल्स भी देखेंगे फिर उसके बाद. ओके, थैंक यू. सो जब सर सकलैन ने मुझे कहा कि हमने कुछ ऐसा प्लान करना है इस फेस्टिवल के लिए कि हम कुछ एक्टिविटी बेस्ड करें, क्योंकि पैनल डिस्कशंस ऑलरेडी हमारे पास थे, हमारा पार्ट थे इस फेस्टिवल का. सो हमने प्लान किया 1 मिनट फिल्म फेस्टिवल. और इसका पर्पज़ ये है कि हमारे यहाँ एक नज़रिया ये पाया जाता है कि फ़िल्म बनाने के लिए आपको जो है वो 2.5 घंटे का स्क्रिप्ट दरकार होता है. फ़िल्म बनाने के लिए आपको एक बहुत महंगा कैमरा चाहिए. फ़िल्म बनाने के लिए आपको जो है वो महंगा इक्विपमेंट चाहिए, कई ढेर सारी लाइट्स चाहिए, सेट डिज़ाइन, आर्ट डायरेक्टर चाहिए, एक बहुत बड़ा सेट चाहिए. सो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ख़र्चा मांगती हैं और इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूम होता है. लेकिन पिछले कुछ वक्तों से जैसे जैसे ज़माना गुज़रता जा रहा है तो हर चीज़ हमने देखा कि वो सिमटती जा रही है और बहुत मुख्तसर वक्त में लोग नतीजा मांगते हैं. ऑडियंस जो है, जो आपकी फ़िल्म देख रही है या जो वो आपकी बात सुन रही है, वो चाहती है कि आप बहुत जल्द से जल्द अपना मैसेज डिलीवर कर दें या अपनी बात कंक्लूड कर दें. तो 1 मिनट फिल्म फेस्टिवल का पर्पज़ यही है, फिल्म वर्कशॉप का पर्पज़ ये है कि हम कम से कम वक्त में आपको कहानी कहना सिखाएं. ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 2.5 घंटे का या 2 घंटे का एक फ़ीचर लेंथ स्क्रिप्ट होगा या 20 मिनट या आधे घंटे का स्क्रिप्ट होगा तो आप कोई फ़ीचर लेंथ फिल्म या शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं. या फिर आपके पास एरी एलेक्सा या सोनी के बड़े कैमराज होंगे या बहुत ढेर सारी लाइट्स होगी तो ही आप फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं. बल्कि आप सिर्फ एक पेज पे, एक पेपर पे 60 सेकंड्स की स्टोरी नैरेट कर सकते हैं, जिस पे पूरा वही स्ट्रक्चर अप्लाई होगा जो कि किसी फीचर लेंथ पे अप्लाई किया जाता है. और साथ साथ आप 1 मिनट के अंदर ऑडियंस को एंटरटेन भी कर देंगे और अपनी बात भी कन्वे कर देंगे. इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई 20 लोगों का 25 लोगों का क्रू अपने साथ लेके फिल्म बनाएंगे. सिर्फ एक आदमी अपने मोबाइल फ़ोन से, जो कि गोरिल्ला फिल्म मेकिंग स्टाइल कहलाता है, जिसके बारे में आपको अभी सर फराज और सर उमर काजी एक्सप्लेन करेंगे. सो मोबाइल फ़ोन कैमरा के ऊपर आप अपनी इस फिल्म को शूट करेंगे और इसके लिए आपको जो टाइमलाइन दी जाएगी वो दी जाएगी कि अभी जैसे ही ये वर्कशॉप का टाइम ख़त्म होगा तो उसके बाद आपको 5 जो है वो थीम्स असाइन कर दी जाएंगी और हर एक थीम के ऊपर वो एक सिंगल वर्ड थीम या टॉपिक होगा. उस टॉपिक के ऊपर आपको स्टोरी खुद ही सोचनी है, खुद ही लिखनी है, खुद ही उसको शूट करना है. आप चाहे तो अपने घर में शूट कर सकते हैं, किसी एक लोकेशन पे शूट कर सकते हैं, कहीं भी शूट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइट्स में, डे लाइट में, कैसे भी, जो भी आपको ईजी हो, जो भी आपकी स्टोरी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से. और ख़ुद ही उसको आप चाहें तो अपने सिस्टम पे या फिर अभी आपके मोबाइल फ़ोन में भी कई सारी ऐसी एप्लीकेशन मौजूद है जिस पे आप फिल्म को एडिट कर सकते हैं और 1 मिनट में आपकी फ़िल्म सामने आ जाएगी. साथ ही साथ ये जो फॉर्मेट है ये एक बहुत पॉपुलर फॉर्मेट है दुनिया भर में, क्योंकि इसका एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है, द 60 सेकंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से. और ये सालाना मुनक़िद होता है हर साल दुनिया भर में, जिसमें कई सारी फिल्म्स जो है वो दुनिया भर से आती हैं और कंपटीशन होता है जिसमें बेस्ट फिल्म्स को वो उस यूट्यूब चैनल पे स्क्रीन करते हैं. तो इस मकसद से बनाइएगा कि सिर्फ ना कि आप ये फेस्टिवल विन करें बल्कि आप इंटरनेशनली भी इस फिल्म को आगे भेजें. सो अब आगे मैं सर ज़ीशान की तरफ मूव करूंगा कि वो इस फिल्म को लिखना किस तरीके से, इसमें होगा क्या क्या, इसके राइटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा. हेलो हेलो सर ये आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. सो फिल्म का ड्यूरेशन कुछ भी हो, कहानी का ड्यूरेशन कुछ भी हो, वेदर इट्स अ सीरीज़, फीचर लेंथ फिल्म, मिड शॉट जिसे कहते हैं, 20 समथिंग मिनट्स की जो फिल्म होती है, या 5 मिनट की फिल्म या 1 मिनट की फिल्म, 2 बुनियादी सवाल ऐसे हैं जिसका बहरहाल जवाब चाहिए रिगार्डलेस ऑफ इट्स ड्यूरेशन, विच इज़ कहना क्या है और कैसे कहना है. ओके, ये जो दूसरा सवाल है कैसे कहना है इज़ वॉट वी call structure. Okay, now what is structure?
Structure is what gives shape. All right? And as human beings, we are programmed for shape. ठीक है? Innate है ये ability हमारे अंदर कि हम shape और shapelessness के दरमियान का फ़र्क जानते हैं. ठीक है? किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है ये. जब शेप होगा तो हम उसे रिकग्नाइज करेंगे और जब नहीं होगा तो भी हम उसे रिकग्नाइज कर लेते हैं. ऑलराइट? सो टू कीप इट रियली सिंपल, बिकॉज अ 1 minute film cannot really get complex, so there can be simple structures and complex structures. Clearly 1 minute film cannot have complex structure. Okay? Well, certainly not comparatively speaking. जो longer duration films के complex structures हो सकते हैं, वैसा तो बहरहाल नहीं मुमकिन है 1 minute की फिल्म में. ठीक है? दूसरा हिस्सा, a beginning, middle, end. A clear beginning, a very clear middle, and a very clear end. Okay? 1, 2, 3. 1, 2, 3 represents an arc. Something that begins, starts to go somewhere, but then turns. And of all the 1 minute films that I've seen, the ones that have really worked for me have a very clear turn in the end. Okay? A twist. Something that जो पहला हिस्सा है जिसका काम है प्रेमिस को सेट करना, व्हाट दिस फिल्म इज अबाउट, ये किस बारे में है. अब वो प्रेमिस एक खास किस्म की एक्सपेक्टेशन सेट करता है फॉर द व्यूअर. उस एक्सपेक्टेशन को सरप्राइज दैट एक्सपेक्टेशन, प्रोवाइड अ सरप्राइज इन रिलेशन टू दैट एक्सपेक्टेशन. ओके? Something should come about in the end that provides a closure to what was set up, but in a way that was not expected. आई बात समझ में? When usually 1 minute films have one twist in the end. What that twist does, it takes your perception and flips it. ऑडियंस के परसेप्शन को एक फ्लिप अराउंड मिलता है इन दी एंड. क्या? जिसकी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं, हम अभी वो आपको दिखाएंगे. एंड व्हाट वी कैन डू देन फर्दर इज उसको कुछ थोड़ा डिस्कशन अगर चाहिए होगा या आपके जहनों में सवाल आते हैं तो यू कैन आस्क अस दोस एंड वी विल गाइड यू थ्रू इट. बट बिफोर वी डू दैट वी हैव फराज एंड उमर काजी. They also need to go through the steps that we've outlined for today's workshop. Okay? Thank you. अच्छा, इसमें करना ये है कि just to clarify, जितने भी participants इन्होंने register किया है, we are giving you around 36 hours to make a 1 minute short film, जिसकी जो deadline है वो हमने set की है कल रात 12 बजेगी. So we'll share a Google Drive link with you. Once you're done shooting, editing, just upload your film there. और ये हम कर रहे हैं in pair of 2, 3. We are doing this in a pair of 2. मैं इसलिए अनाउंस कर रहा हूँ कि आप अपने कहानी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बैक ऑफ योर माइंड सोचते भी रहें और अपने ग्रुप्स बना लें. आप स्ट्रक्चर के बारे में सर आपकी इजाज़त से कुछ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा. ये मेरे भी उस्ताद हैं तो ऑब्वियसली इनसे ही मैं जो कहने वाला हूँ, इन्होंने ही मुझे बताया कि दिनों की कहानी ना सोचें, हफ्तों की कहानी ना सोचें, एक पर्टिकुलर मोमेंट के बारे में सोचें. तो वो जो भी किरदार है आपकी फ़िल्म का, उसकी पूरी ज़िंदगी का एक दिन का 1 मिनट हम ये देख रहे हैं. और लिनियर चलने की कोशिश करें. जिस पॉइंट से आप कहानी में एंटर हुए हैं उससे हम आगे कोशिश करें कि वक्त के हिसाब से हम आगे बढ़ें, बैक एंड फोर्थ ना करें उसको. सो ट्राई टू अवॉइड फ्लैशबैक्स मे बी, बिकॉज इन दिस शॉर्ट फॉर्मेट ये वर्क नहीं करता इतना. सीरीज़ में करता है, फिल्म्स में करता है फ्लैशबैक्स, ये छोटे फॉर्मेट में वर्क नहीं करता. सो या दैट वाज वन. अबाउट दिस जो उमर काजी ने इंट्रोडक्शन दिया था पहले, वो ये कि फिल्मिंग वाइज बहुत ग्रैंड ना सोचें
कि मैं बड़ा कैमरा चाहिए होगा या लाइटें चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए. सो डू इट वेरी गुरिल्ला स्टाइल. गुरिल्ला स्टाइल क्या है? यूज़ नेचुरल लाइट, सनलाइट में करें. हाँ, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैं गोल्डन आवर में शूट करूं, सुबह सुबह शूट कर लूं या शाम में शूट कर लूं, बेहतर लाइट में शूट कर लूं, या अंदर भी अगर शूट कर रहे हैं सो आप उसको नेचुरल लाइट पे शूट करें. मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन यूज़ अ रिफ्लेक्टर और मे बी अ पॉली. जो लोग यहाँ पे फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, आई एम श्योर, दो जो बॉयज़ आगे बैठे हैं, आई एम श्योर यूर अवेयर कि पॉली क्या होती है, रिफ्लेक्टर्स क्या होते हैं, ताकि फेस थोड़ा सा बेहतर लेट हो जाए. उसके अलावा वी नॉट एक्सपेक्टिंग मच कि बहुत कोई ग्रैंड, हम कोई सिनेमैटिक मार्वल बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. आपके पास सेल फोन है, अपना सेल फोन से शूट करें. और सो इफ़ एनी वन ऑफ यू ओन्स अ DSLR, अगर आप उस पर करना चाह रहे हैं आप उस पर भी कर सकते हैं. हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो डिलीवरेबल हो आपका वो 1080 हो HD. हम आपने शूट करना है 4K में, 8K में, जिसमें शूट करना है आप करें, हमें मसला नहीं है. हम ये प्रेफर करेंगे कि आप HD ही शूट करें और हमें HD ही डिलीवर कर दें. नेचुरल लाइट पे शूट करना है. You don't have to use lights. You don't have to just focus on your characters, focus on your location, and focus on the story. That is more important to us. So yeah, that is from my side. If you have any questions about how to go about it, shooting wise, so please do ask them. किसी के हैं कोई सवाल जो participants हैं? जी सर. अच्छा, ओके. तो questions नहीं है, so मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा. जब सर अली ने और सर ज़ीशान ने बात की अबाउट द आइडिया एंड सर फराज ने बात की अबाउट द सिनेमाटोग्राफी एंड द प्रोडक्शन ऑफ दैट शॉर्ट फिल्म, आप में से कितने लोग हैं जिनके पास जो यहाँ पे रजिस्टर्ड है हमारे पास, उनके पास इस वक्त नोटबुक और पेन है, एंड आपके पास सेल फोन है? यू आर अ फिल्म मेकर, यू कैन डू एनीथिंग. जितनी भी फिल्म्स आपको दिखाई गई हैं उसमें कोई साइंस नहीं थी, एंड सिर्फ सिंपल एक थॉट होता है कंसीव करने का कि क्या चीज़ सोची गई है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है. ये एक ब्रिज है. अगर आप उसको जितने आसानी से और जितना हम्बल तरीके से डील करेंगे उतनी अच्छी आपकी फिल्म होगी. वी नो कि बाहर बहुत गर्मी होगी, सनलाइट आपको तंग कर रही होगी, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं होगा अभी, लेकिन फिल्म मेकिंग इसी चीज़ का नाम है. आपने अपने आइडिया जो भी आप कंसीव करेंगे इन आइंदा आने वाले 36 घंटों के अंदर, उसको आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो जो प्रोसेस है उसको समझिएगा तो आपकी फिल्म ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी. ठीक है. सो हम थीम्स के बारे में इन मोस्ट ऑफ द फिल्म्स आपने नोटिस किया कि यहाँ पे किसी में बहुत ज़्यादा हैवी डायलॉग्स नहीं है. सो इट्स ड्रिवन बाय म्यूज़िक. या तो म्यूज़िक है या नरेशन है या डायलॉग अगर आपने करना भी है तो कीप इट टू द मिनिमम. एंड इफ़ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड डायलॉग्स, जस्ट मेक श्योर यू हैव अ माइक. अगर आप जनरल माइक पे करेंगे, सेलफोन के माइक पे, तो उसकी डिस्टॉर्शन इतनी होती है, वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता सुनने का. सो तीनों ऑप्शंस खुले हुए हैं. सिर्फ म्यूज़िक पे कर लें या साउंड डिज़ाइन पे कर लें, या अगर हैं डायलॉग कि यार इस डायलॉग के बगैर कहानी पूरी नहीं होगी, कर लें इंक्लूड. वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम. जस्ट मेक श्योर कि वो ऑडियो जो है वो क्लियर हो. अगर उस वक्त नहीं था माइक तो बाद में जाके ADR कर लें, सिर्फ 1-2 लाइन्स ही होंगी. जस्ट ट्राई कि वो बेहतर तरीके से रिकॉर्ड हुआ. दूसरा एक और चीज़, जस्ट मेक श्योर कि अगर फिर शूटिंग फ्रॉम सेलफोन तो हम पोर्ट्रेट मोड पे नहीं कर रहे, हम लैंडस्केप मोड पे कर रहे हैं. सही है, मतलब ये अंडरस्टूड सी बात है. दैट्स इट. थीम्स. हेलो. अच्छा, बस ऑल्दो कि ये बात अंडरस्टूड है, लेकिन फिर भी इसे दोबारा कहने में कोई मज़ाक़ा नहीं है कि हम बाज़ सब्जेक्ट्स से दूर रहें तो बेहतर है. ठीक है. मिसाल के तौर पर रिलीजियस सेंटिमेंट किसी की हर्ट नहीं करने, एथनिक आइडेंटिटी किसी की वो अटैक ना हो रहा हो. सही. अदर देन दैट एनी टॉपिक इज़ फेयर गेम, राइट. और ये कुछ अल्फाज हैं, इनकी उसकी लिस्ट है जो थीमेटिक कंटेंट के लिए, ठीक है, उससे आप जनरेट कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने नैरेटिव्स को. नंबर 1 इज़ chaos, 2 trust, 3 courage, 4 victory, 5 regret. Okay? And
don't feel bound by any of the things that we told you, actually. Break them if you want to. I would like to be surprised how you bent or broke the rules that we stipulated, except the ones जो मैंने अभी जिक्र किया, वहाँ हम ना जाएं, उसके अलावा दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है? Thank you. अच्छा, अभी जो हमने आपको थीम्स दी हैं, इन थीम्स पे आप सोच लीजिए, हम यहीं कैंपस के अंदर मौजूद होंगे। यू कैन गो टू वॉलंटियर्स के पास, आप जाके पूछ सकते हैं, हम एक ग्रुप भी बना देते हैं उसका, ताकि आप हमें ईजिली कनेक्ट कर सकें। आप उन थीम्स पे काम कर लें और आज ही के दिन आप हमसे वो चीज़ें अप्रूव करा लें एंड आप काम पे लग जाएं। So what we'll do is we'll make a WhatsApp group very quick. Can we have Rehma here? रहमा से आप कांटेक्ट करें, जस्ट मेक श्योर कि रहमा आपकी हेल्प कर देंगी, सही है? सो शील मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, फिल्म कहाँ अपलोड करनी है, कुछ भी है, तो हमारा और आपका राब्ता बना रहना चाहिए। सो फॉर दैट द फोकल पर्सन इज रहमा, सही है? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? कुछ भी सवाल है तो पूछ लें अभी। बॉयज़ इकरा से जो आए हैं, कोई है सवाल? नहीं। ख़वातीन जो बैठी हैं उधर, गर्ल्स, कोई सवाल? नहीं। हैदर, यू हैव अ क्वेश्चन? Okay, my question is, does the 1 minute include the title screen and the credits as well? Okay, thank you. अच्छा, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा एक्चुअल 1 मिनट हो, 1 मिनट 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, या वो 58-57 सेकंड्स पे भी अगर आपकी कहानी कंप्लीट हो रही है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बस कीप इट सिंपल, एक कोई न्यूआंस, एक कोई मोमेंट लाइफ का, सही है? एक कैरेक्टर, उसकी कोई वांट है, और आखिर में उसके साथ कुछ सरप्राइजिंग होता है, बस ये चाहिए। थैंक यू सो मच। Now, we would like to call upon President Ma'am Shanaz Wazir Ali on the stage. Again. Thank you. We would like to call upon Miss President, Miss Shanaz. Please come on the stage and please say a few words. So thank you. I'm really very excited always when the media festival takes place. I think for me it's really probably one or two most important events on Zabist campus. And I'll tell you why. Even though the media science department is not the largest, but it is the most creative. And each and every student that's here and each and every faculty member is original in many ways. What you do in your classrooms, what you teach in your labs, what you show on the screen, the music that's produced, the ideas that come out, these don't happen in any of the other courses. Management science, HR, finance and accounting, supply chain, project management, computer science. ये बड़े rigid disciplines हैं. They are formed on the base of certain knowledge, and that knowledge is combined over a long period of time and represented between the two covers of a textbook, and that's what you have to learn. And so if you're in any of the other disciplines, engineering, life sciences, almost any of the others, you are prescribed and proscribed. But in media science it's different, because every class is different, every student is different, and you're allowing them the creativity. So I'm always very excited when the ZAB Media Festival takes place. And my apologies to all of you and to Saklan Saab in particular for not being here for the morning session, and to all the faculty. I had it very much on my calendar, but unfortunately the government had called a meeting for which I had to go because it had to do with Zabist and our other campuses and expansion plans, so
That's what happened. It's really quite an interesting series of events that you're having. And what I liked about this time, the way you've organized it, is that you've done a quality festival this time. It's not too many things. It's not an overload. And 8 panelists sitting here and 10 panelists and all very, very high profile people coming. And that's what I really like. You've got a good panel discussion on social responsibility. You've got a panel discussion on resilience and visuals of change. You've also got some music. You've got this wonderful 1-minute documentaries. So I thought maybe, are they called, Zishan, short films? What do you call your 1-minute? Short films? 1-minute shorts. 1-minute shorts, okay. So let me ask the students, because I saw, I think there were 8 or 9 of them. So let me ask you, I don't know how to now remember each one of them. Zishan, can you come up and help me? I wanted to know what you thought of the films. Which is the one that struck you the most? So do you have a list, generally? Do you have a list of the different short films? उनके titles तो मुझे याद नहीं है. The first one was The Two Gentlemen, right? They were from another period in time, sort of rather British. A Believer. In the Dark Art Gallery. So he asks him a question. The conversation is very limited. He just says, do you? And he says, yes, I do. And then he said, do you? So it's the power of silence and the power of just few words. I quite liked this, मगर इसका पूरा मतलब मुझे भी नहीं समझ आया, सो मैं बाद में सोचती रही. फिर मैंने सोचा कि जो फिल्म आपके जहन में क्वेश्चंस छोड़ जाती है, that's also a very powerful way of making a statement. So how many of you thought this was a pretty good film? I won't say it, I'm not going to ask you first, second, third, but did you think this film, this short 1 minute, had impact? Raise your hands. Okay. Oh, wonderful. All right, so let me ask this student here in the blue shirt and the glasses. Just tell me one thing that you found effective about this. The fact that the ghost was the one, the shock element in the film was a ghost whoever se पूछता है, do you believe in ghosts? And the normal guy answers yes, and then, we cut to the white shot and he just disappears. So that's Very impact. और किसी ने हाथ उठाया था इधर से? Who liked this film? You don't want to answer? What did you like? About 20 hands went up. What did you like about this? हाँ, एक बात बता दें, इस फिल्म में क्या है? Interesting बात थी. One thing I really like about the film is that I think cinema in general, I think it works on this feeling of hiding something and then revealing. I think how it shows concealment and revelation is I think very creative. Yeah, it had even the visuals were very powerful, I thought. एकदम attention catch कर लेते हैं. और फिर आप सोचते हैं कि ये क्या कहने लगे हैं, ये कौन लोग हैं, ये क्या करने आए हैं, क्या कहेंगे. Questions in your mind. So I thought it was a very effective way of them doing it. And the conversation was literally 2 sentences, 1 or 2, that's it. And then it ended. So let's go to the next one very quickly. They were all so good. I thought 2 of them, I will give you my impression on them. I thought the music was a bit distractive. How did you like this one? Anybody like this one? What was so interesting about this one? He's just eating with chopsticks. ये क्या convey करता है? Anybody? Okay. I think it conveys the idea that it shows adaptation, how people, despite that they cannot do things the way they are supposed to be done, but they can adapt and learn things their own way, basically. Any other interesting comment on this? Ji, aap bataएं. Just one quick 10-second comment. So determination, right? I mean,
Okay. So let me ask anybody who can tell me, what were the three main emotions that came out of this? Anybody give me one emotion? Huh? Sorry? Relatability? Frustration. What else? Frustration, achievement, etc. Okay. Quite interesting. Not so powerful, but just wonderful. One or two more, quickly, because I know we have to move on. Or dikhaiye. Jaldi, jaldi, just 10 seconds. Okay. So you remember this? Smiley faces? That's all he had. You saw smiley face everywhere. So what's so fantastic about that? What are the emotions he has? आप बताएं, somebody sitting in the back. इस फिल्म में कोई emotion थी? He sees a smile everywhere. What is he expressing? इसके face पे क्या expressions थे? जी? कोई expression नहीं था? या आपने देखी नहीं? सब लोग सोए हुए तो नहीं थे? हाँ तो बताएं. कोई इमोशन थी इसके फेस पे? हाँ? Depression? Definitely. Huh? He saw something that was cheerful. He smiled for a bit and he fell back into some depression. You think it was a good shot, 1 minute? Yeah. Yeah, I guess so. Okay, jaldi se next one. Next one quickly. The toast. Toast वाली कैसे लगी? हाँ? Okay, इसको fast forward करें. What did you think of this one? अच्छा, इसकी subject are these powerful subjects? Chopsticks and smiley faces. ये powerful subjects हैं? हैं? आप बताएं. They're ordinary, everyday subjects, okay? I won't go through all of them. But I just wanted Zishan to teach me also, how do you evaluate a film like that? At some point. And that's what, to me, in the media film or media festival, that's what's interesting. That if you're really watching, listening, all your senses are involved, it's a fantastic experience. And it should make you think critically. If you had to do a film like that, how would you do it? Would you do it better? Is it good enough? Would you reject it? Would you like to see it again? You know, all of these things are learning experiences. And that's what's so wonderful about the Media Festival. And you have wonderful faculty here. And I'm absolutely very, very excited about what all of you have done for us, Umair, everyone. Saklan Saab has been telling me that we are going to do a media festival with a difference. And I do find that this is a media fest with difference. You have some high-profile people coming in, some good workshops, and I hope that these 2 days are going to be very exciting, very interesting for you. I look forward to the day that from Zabist we can get some more nationally acclaimed short films, so that somebody from Zabist will make 1 or 2 or 3 one-minute films that will achieve more distinction, and maybe even longer films. And you do know that we have some students who a few years ago were selected, their short film was selected for the Short Film Corner at the Cannes Festival. The Cannes Film Festival, C-A-N-N-E-S, which is the Cannes Film Festival, way out in France. And that's the top of the line. So I'm really very pleased to be here. And I look forward to attending some of your sessions. Apologies once again that I can't attend all. But thank you very much, Zishan.
Thank you to all the faculty members and to Sir Glenn Saab.